Yes, Abhishek, we are live. Okay. Hello, viewers. Welcome to another session by Anajori. This is a webinar that discusses various issues and various initiatives in the Northeast. Today, we have with us Vineet Bagaria from Animal Welfare People, and he'll be telling us how his organization works with stray animals, treats them, and we'll also be telling us some things about how to deal with stray animals and take care of them. My Uh, name is Abhishek, and I will be your host tonight. Vineet, first of all, if you can tell us something about yourself and how Hello, you Abhishek. started Yeah. Animal Welfare People. First of all, good evening, Abhishek. Uh, Actually, Animal Welfare People was started by us in 23rd November 2018. So basically, when we started, we were just two members, me and Anandita, Mhm. and today we are around 65 members. So like Okay. we grew as a team. Okay. We grew, uh, and then the main thing which we do is we rescue the stray animals. Like we Mhm. get calls from people that there is a dog who got accident or something like that. So then Mhm. we go for the rescue. Then we take the rescue to the doctor, get it treated. Mhm. Then we foster the animal at our place. And once it gets fine, and either we release it in the same place or we go for adoption. Like we get them adopted to some better place. So this is Okay. how we work. And we also conduct So you food also drives. have a Like foster home. actually, right now we don't have a foster home as such, but like there are few members like me who keep Mhm. dogs in their house. Like I Okay. can I can keep around 4 to 5 animals at my place in my own personal Okay. foster place. So same way there are other members as well who can like Mhm. foster. So that way we foster, but uh, now we have to get a shelter place because we don't have enough space. So many times it happens like due to the space problem we cannot do the rescue. So that's Mhm. why we are now working on the shelter home thing. Once that gets done, then it won't be an issue for keeping the animals. Right. Right. So, what kind of animals do you usually rescue, and what what's the extent of the treatment or rescue operations that you do? Mainly, we rescue dogs and cats because they are the most abused animals. Because like Mhm. cow, goat, they are always someone's. They always have a owner because people Mhm. get something from out of it. No? Like people Right. who has cow, they can sell their milk or something like that. But dog and cats, they Mhm. don't have as such. So mainly 80% of the rescues which we do are of cats and dogs, and we also rescue cow, goat, birds also, and sometimes Mhm. reptiles. Okay. Reptiles as well. Yeah, like snakes and all. Okay. So, mhm. So you have uh, an in-house herpetologist or someone who assists you in that? No, we there's a forest department in Dibrugarh. They are very active. So whenever we get a call for Mhm. rescuing snakes and all, Okay. so we inform them and get it Mhm. done through them. Okay. So what are the conditions usually that require, rescuing? What are the conditions that you find the animals in? Mostly the conditions are like they are hit by a car. Either they are Sorry. hello. Okay, I guess one of our viewers have their audio turned on. I Yeah, I would just request him or edited the her to setting. please turn It's off fine. the audio. Yeah. Okay, great. Sorry, Yeah. Vineet. Yeah. Yes, please continue. Like mostly the cases which we get are like of accident cases most of the time. Okay, So okay. in that case, mostly their legs are broken or sometimes spinal cords are broken. That is Mhm. the main things, the common things which we are getting every day. Okay, okay. And how do you deal with it? How do you rescue? Can you tell us something about the Mm, rescue operations? What goes into the rescue operations? How do your uh, volunteers mhm. approach the animal? Okay, I'll now come to Hindi, so it will be better for me to explain it.
तो लाइक Yeah, sure, हमारे please. जैसे हमारे पास जब रेस्क्यू कॉल्स आते हैं ना, तो सबसे पहले तो हम लोग का एक व्हाट्सएप का ग्रुप है जिसमें हम लोग सारे मेंबर्स हैं। तो हम लोग वहाँ पे शेयर करते हैं कि ऐसा ऐसा है, यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ है या एक रेस्क्यू है, हम लोग को करना है। तो फिर उससे हम लोग का ग्रुप में रिस्पॉन्स आता है कि लाइक जो जो मेंबर्स हैं सारे तो सब टाइम फ्री नहीं रहते, तो जो जो रेस्क्यू कर सकते हैं तो हम लोग एक टीम बना लेते हैं, लाइक 2-3 मेंबर्स। फिर हम लोग वहाँ जाते हैं एंड फिर देखते हैं कि वो एनिमल का क्या कंडीशन है। जैसे 80% ऑफ द टाइम तो एनिमल काफ़ी जो भी हम लोग को मिलते हैं ना, अग्रेसिव नहीं रहते हैं, तो हम लोग डायरेक्टली उसको गाड़ी में ले सकते हैं, उसके बाद डॉक्टर के पास ले जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ड्यू टू पेन दे गेट एग्रेसिव, तो उसके लिए हम लोग के स्पेशल गियर्स है, लाइक वी हैव नेट, देन वी हैव दिस कैचिंग लूप एंड वी हैव ग्लव्स, वी हैव फेस मास्क। तो वो सब हम लोग यूज करके उनको डॉग को या एनिमल्स को अपने कंट्रोल में ले आते हैं एंड लेने के बाद हम लोग अपनी गाड़ी में लेके उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं एंड उसके बाद उनका ट्रीटमेंट होता है। एंड ये ट्रीटमेंट जो होता है ये 1 डे का थिंग नहीं है कि लाइक आई टेक इट टू अ डॉक्टर, डॉक्टर ट्रीट्स इट एंड आई कैन लीव हिम बैक द सेम प्लेस। इट हैज टू बी टेकन आफ्टर केयर, लाइक उसका एवरीडे एंटीबायोटिक्स का इंजेक्शन होगा, उनको प्रॉपर फूड देना होगा, मेडिसिन देना होगा। तो उसके बाद एक टाइम के बाद ही उन लोग रिकवर होते हैं स्लोली। तो इन द मीन टाइम हम लोग उसको फॉस्टर करते हैं एंड एक बार जब वो पूरा ठीक हो जाते हैं तो हम लोग का पहला ट्राई रहता है कि उनको अडॉप्ट करवा दें, क्योंकि क्या होता है अगर वापस रोड में ही हम लोग छोड़ेंगे तो वापस से उसका एक्सीडेंट हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं उनको अडॉप्ट करा देने का। एंड अडॉप्शन का भी ऐसा है कि आप पकड़ लीजिए कि एडल्ट डॉग्स रहते हैं ना, अगर एडल्ट डॉग्स का अडॉप्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट 50% टाइम हो जाता है एंड बाकी 50% टाइम हम लोग फिर वहाँ पे छोड़ देते हैं। बट हम लोग छोड़ने के बाद एक मॉनिटर रखते हैं उनके ऊपर, लाइक हम लोग का चूंकि हम लोग का अराउंड 65 मेंबर्स है, तो थ्रू आउट द प्लेस आई एम स्टेइंग हर दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई एरिया में बेस्ड है। तो जो एरिया में जो जन है उनको हम लोग बोल देते हैं कि प्लीज कीप एन आई ऑन हिम एंड हो सके तो टाइमली आप लोग खाना भी दे दो। तो उस तरीका से हम लोग उनको मॉनिटर करते हैं। और आपने बताया कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में अभी 65 लोग हैं, तो ये जो 2 लोग से फिर 65 लोग, ये जर्नी कैसा रहा, कितने साल में हुआ और क्या चैलेंजेस आई आपके ऑर्गेनाइजेशन को इतना मतलब बड़ा करने के लिए? हाँ, देखिए ये 2 से हम लोग का 65 इट टुक अस ऑलमोस्ट 2 इयर्स एंड ये ऐसा नहीं कि खाली 65 मेंबर्स ही है, बहुत जन हम लोग के साथ जुड़े। बट क्या होता है ना, एक प्रॉब्लम क्या होता है कि बहुत जन चाहते हैं कि एनिमल्स का रेस्क्यू करे, या जब उन लोग फेसबुक में हमें देखते हैं तो उनको भी लगता है हाँ मैं भी कर सकता हूँ, उन लोग टीम को ज्वाइन भी करते हैं। 18 को शुरू किया था? हाँ 2018 को आप दोनों ने मिलकर? हाँ। ओके तो ओके। उसके बाद बहुत जन हमें ज्वाइन करते हैं, बट लाइक आफ्टर वीक और 2 फिर उन लोग इंटरेस्ट देना छोड़ देते हैं, तो उसके कारण तो वैसे करते करते बट स्टिल हम लोग का टीम ऑफ 65 मेंबर्स है। ये जो 65 मेंबर्स है ये पूरा डेडिकेटेड है। अब सबका ये नहीं है कि सब रेस्क्यू ही करेंगे, लाइक हम लोग का बहुत सारा काम रहता है ना, एक हो गया रेस्क्यू, एक हो गया फॉस्टरिंग, एक हो गया एडॉप्शन का पोस्ट सबका देखना कि एडॉप्शन करवाए, एक हो गया जो हम लोग का फेसबुक सोशल मीडिया का हैंडल को ऑपरेट करना, फिर हो गया फूड ड्राइव के लिए खाना बनाना। ऐसा तरह तरह का काम है, तो सब हम लोग ये 65 जन में डिवाइड करके रखें। एक ये भी है कि हम लोग को फंड्स का भी दरकार रहता है, तो कोई कोई हमारे मेंबर्स है जो कि हमें फंड्स प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीका से हम लोग टीम ऑफ 65 वी डू द वर्क। ओके, तो आपने ये जो अभी एक इम्पोर्टेंट बात कही कि फंड रेज करना पड़ता है, तो किसी भी एनजीओ के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि फंड कैसे रेज करें। तो आप लोगों के लिए भी ये चैलेंज रहा था? एक्चुअली मेरे को नहीं लगता ये चैलेंज है, क्योंकि क्या हुआ ना, स्टार्टिंग में तो हम लोग फंड कभी मांगे नहीं, बट हम लोग को इनिशियली क्या हुआ ना, हम लोग का काम देख के लोग अप्रोच किए कि लाइक वी वांट टू कंट्रीब्यूट समथिंग, एंड फिर अभी हम लोग का पेज का अच्छा खासा फॉलोअर भी है। तो अब हम लोग पोस्ट में कभी कभी जब हमारे पास फंड का शॉर्टेज रहता है ना, तो वी पोस्ट दैट वी आर रनिंग आउट ऑफ फंड, देन वी ऑटोमेटिकली स्टार्ट गेटिंग फंड्स फ्रॉम देम। लाइक आप जब काम कर रहे हो ना सही, एंड लोगों को जब दिखता है कि यू आर एक्चुअली डूइंग समथिंग, एंड ऐसा नहीं कि आज किया एंड उसके बाद 10 दिन नहीं किए, वैसा नहीं। इफ यू आर डूइंग इट रेगुलरली एंड लोगों को दिखेगा वो चीज, तो फिर लोग आपको खुद ही आएंगे हेल्प करने के लिए, तब फिर वो फंड के लिए इतना इश्यूज नहीं होता है।
मतलब मेरा तो एक्सपीरियंस वैसा ही रहा, मतलब मेरे को फंड्स को लेके आज तक वैसा कोई इशू नहीं हुआ, टचवुड। हमारे को अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है लोगों से, तो दे हेल्प अस। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि आपको एक फॉस्टर होम भी अभी जरूरत होगी आपको। हाँ, तो ये हाँ, जो फॉस्टर होम जब होगा तो आपके यहाँ पे ऑफकोर्स रेसिडेंट एनिमल्स भी आएंगे, कुछ ऐसे एनिमल्स रहेंगे जिनको शायद लॉन्ग टर्म केयर की जरूरत पड़े, या फिर हाँ आएगा, कुछ एनिमल्स ऐसे रहेंगे जिनको शायद कभी भी बाहर नहीं कभी छोड़ भी सकते, नहीं छोड़ विद सकते। सम परमानेंट डिसेबिलिटी हाँ, सफर कर सकते हैं एनिमल्स। हम्म, तो तब आपको एक रेगुलर फ्लो ऑफ फंड्स की जरूरत पड़ेगी। तो हाँ, उसके करेक्ट। लिए क्योंकि मैं आपको ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैक्सिमम एनजीओ, ऑलमोस्ट 99% एनजीओ के को जब भी लाइक हम लोग बात करते हैं उनसे, जब भी एनजीओ से बात करते हैं तो उनका यही एक प्रॉब्लम रहता है कि फंड्स नहीं होते हैं, एक रेगुलर फ्लो ऑफ फंड्स की बहुत एक दिक्कत रहती है। तो क्या आपको भी लाइक वैसे एक रेगुलर फ्लो ऑफ फंड चाहिए होगा? अगर चाहिए होगा तो हाउ डू यू प्लान टू एड्रेस दैट इश्यू? जैसे अभी फिलहाल हमारा ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड नहीं है, तो अभी वैसा हम लोग के पास उतना फंड नहीं आ रहा है, बट अभी हम लोग का ऑलरेडी इन प्रोसेस है, तो मोस्ट प्रोबेबली लाइक इन अ मंथ और 2 हम लोग का रजिस्ट्रेशन का काम सक्सेसफुली हो जाएगा। तो एक बार सक्सेसफुली हो जाए तब फिर जैसे हम लोग सोच रहे हैं कि जैसे बड़े बड़े कंपनीज है ना, जैसे ऑयल इंडिया हो गया या वैसा कुछ भी, तो उनका CSR फंड रहता है। हम लोग को भी अगर जब दिखेगा ना कि वी आर डूइंग समथिंग गुड, तो हम लोग उनको अप्रोच करेंगे, तो मे बी दे विल हेल्प अस। तो उस तो तरीके से हम लोग का एक करेंटली, जी सॉरी, प्लीज नहीं कंटिन्यू। नहीं बोलिए, नहीं बोलिए। तो करेंटली आपके पास अभी फॉस्टर होम भी नहीं है, so once this foster home comes up, you will need you know a larger batch of volunteers. Do you think that you will need a larger batch of volunteers? As of now, I don't think, because we are already 65 members, out of which like even if one member goes to the shelter home once in a day, तो ये हम लोग को इशू नहीं रहेगा। एंड प्लस हम लोग क्योंकि अगर शेल्टर होम करते तो वहाँ हम लोग को परमानेंट एम्प्लॉय भी रखना पड़ेगा, तो वैसा इशू नहीं रहेगा। Okay, मतलब okay. अभी जितना अपना अपना स्ट्रेंथ है उतना में हो जाना चाहिए, बट अभी क्या मेरे पास भी वो चीज़ का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लाइक अभी तो हमारे पास एक लिमिटेड है। एक बार जब शेल्टर होम हो जाएगा उसके बाद लाइक हम लोग तो क्या डे 1 से कुछ ना कुछ गलती करते हैं, सीखते आ रहे हैं, वैसे वैसे करके अभी तक यहाँ पहुंचे। तो ये शेल्टर होम होने के बाद भी हम लोग को फिर तब मालूम पड़ेगा कि और हम लोग को मेंबर्स चाहिए, फिर हम लोग को कितना फंड चाहिए, कैसे ये मैनेज होगा, वो तो ये होने के बाद ही। कर लिया, हाँ, जगह आइडेंटिफाई कर ली है आपने? हाँ कितना नहीं, स्पेस जगह रिक्वायरमेंट जगह पड़ेगा? जगह आइडेंटिफाई नहीं हुआ, हमारे यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुआ था, तो वो लोग बोले हमें उन लोग जगह दे देंगे, बट पहले उसके लिए हमारा एनजीओ को ओके, रजिस्टर होना पड़ेगा। तो एक बार रजिस्टर हो जाए तो एटलीस्ट हमें रजिस्ट्रेशन दो, चाहिए। हाँ, तो एटलीस्ट 2 बीघा जैसा लैंड तो चाहिएगा प्रॉपरली अगर काम करने के लिए। Okay, okay. So do you think land acquisition would be a problem? I don't think so, because the administration out here, they are doing fantastic job and they are supporting us a lot. Like जब लॉकडाउन भी हुआ था, तो लॉकडाउन होने के एक दिन पहले मैं जाके एडमिनिस्ट्रेशन को मिला एंड मैं बोला कि कल से तो जैसे लॉकडाउन हो जाएगा, देन स्ट्रीट को कौन खाना देगा, एंड दे राइट अवे गिव अस द पास टू लाइक गो एंड फीड द डॉग्स एंड एनिमल्स। तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ का मेरे को नहीं लगता इतना इशू आना चाहिए, क्योंकि दे आर वेरी सपोर्टिव। Okay, okay. So this is a very interesting and very important, a point that you mentioned, feeding the strays during the lockdown. Yeah. Often we have found that animals, are suffering in pockets around various cities due to lack of food, because mostly these animals are scavengers, right? Yeah. The strays are mostly scavengers. So they they ran out of food and people started feeding them. और इसके लिए बहुत एक एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट भी कभी कभी एक क्रॉप्स अप की किसी लोकेलिटी में कुत्तों को खिला रहे हैं, तो उस लोकेलिटी के रेसिडेंट्स भी दे फ्लेयर अप, why are you feeding the dogs here, ये वो, right? So have you faced any issues, such issues in Dibrugarh?
just tell us about your experience during the lockdown, feeding and treating these animals during the lockdown. मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ डिब्रूगढ़ में जो यहाँ के पब्लिक है ना, ये चीज को काफी सपोर्ट करते हैं। तो Okay. हमें इस टाइप का तो इशू नहीं हुआ, बट हाँ एक इशू जरूर फेस करने मिलता था कि लाइक सपोज हम लोग जब फीड करते हैं ना, तो वी फीड अराउंड 300 250 350 डॉग्स और एनिमल्स व्हाटएवर। तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू लाइक, हम लोग तो पेपर में फीड करते हैं ना, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि एक एक जो हम लोग फीड करते हैं उसके वेट करें कि वो खत्म करे एंड उसके बाद उसका पेपर को डिस्पोज करे, क्योंकि वो चीज हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर वो चीज हम लोग करने लग जाए तो इट विल टेक अस ऑलमोस्ट होल डे टू डू दैट। तो क्या होता है, हम लोग तो बेसिकली फुटपाथ में ही फीड करते हैं या रोड के साइड में। तो ये प्रॉब्लम हम लोग को फेस करने मिला कि जैसे किसी का शॉप रहता है ना सामने, तो वो हम लोग को बोलते हैं कि यहाँ से दूर करो, ये करो वो करो। तो हम लोग उनको बोलते हैं, पहला बात हम लोग आपके शॉप में तो दे नहीं रहे, वी आर डूइंग इन द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, वो आपका प्रॉपर्टी भी नहीं है एंड वी आर कमिंग आउट फ्रॉम, इतना दूर आ रहे हैं हम लोग खाना दे रहे हैं। लीस्ट यू कैन डू इज कि जब हो जाएगा एक पेपर को तो आपको डिस्पोज करना है और तो आपको कुछ नहीं करना है। लाइक अपने एंड से आप इतना तो कर ही सकते हो कि आपके दुकान के बाहर का डॉग है, आप उसको कुछ कर नहीं रहे, हम लोग आके फीड कर रहे हैं। तो बस आप एक काम कर सकते हो ना कि पेपर फेंक दो या तो इग्नोर करो वो चीज को। नेक्स्ट डे मॉर्निंग म्यूनिसिपैलिटी का वर्कर जो आएंगे उन लोग तो साफ करेंगे। वो चीज का एक इशू होता है। मतलब लोगों को कम से कम इतना कंसिडर करना चाहिए कि अपने कंफर्ट जोन। ऐसा कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, झगड़ा हुआ है? हुआ ये सब चीजें। And how do you deal with that situation? उस समय मतलब देखिए मैं वैसे कैसे हैंडल करते हैं? उस समय मैं कोशिश करता हूँ काम रहने का, बट हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। मैं अगर मेरे को कोई ऐसा बोलता है ना तो मैं फिर उनको बोल देता हूँ कि हाँ मैं यहाँ करूँगा, आपको कोई इशू है तो करते रहो, आपको मेरे को तो आप रोक नहीं सकते। आपको लगता है कि आप कुछ करो, कंप्लेन करो, जो करना है करो, बट हम लोग फीड कर रहे हैं, हम लोग करेंगे। आपके दुकान के अंदर जाके तो हम लोग फीड कर नहीं रहे, हम लोग तो फुटपाथ में या स्ट्रीट में कर रहे हैं जो कि गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है। तो यू हैव नो राइट टू टेल अस। पहले हम लोग प्यार से समझाते हैं, बट क्या नहीं होता तो हम लोग बोलते आपको जो करना करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कंप्लेन करना है जो करना है, क्योंकि एवरीवन नोज व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर डूइंग समथिंग गुड एंड प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप उसको, हम लोग को भी पता है कि वी आर लिटरिंग द थिंग, बट पॉसिबल नहीं है कि आप अगर जब 250 300 350 डॉग्स को फीड कर रहे हो या तो उसके बाद आप रुक के एक एक पेपर को डिस्पोज करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्या लॉकडाउन में जैसे हमारे पास जो पास था, तो हमारे पास 3 जन का पास था, तो ऐसा भी नहीं कि हम लोग 4-5 ग्रुप करके कर रहे हैं, तो लाइक एक ग्रुप को 50-50 करके दे दिया तो उनके लिए पॉसिबल होगा। अब हम लोग 3 जन एक ही गाड़ी में जाके कर रहे हैं तो पॉसिबल नहीं होता वो चीज। तो वो चीज का हम लोग वैसे ही डील करते हैं। और लॉकडाउन में ऐसा कोई इंस्टेंस आया था, कोई सिचुएशन आया था जब कि एनिमल रेस्क्यू करने की जरूरत पड़ी हो? हाँ एवरीडे हम लोग का लॉकडाउन में आपने जैसे कहा कि यूजुअली द एनिमल्स दैट यू रेस्क्यू आर एक्सीडेंट विक्टिम्स, तो लॉकडाउन में वैसे भी व्हीकुलर मूवमेंट बहुत कम हो जाता है। तो इस टाइम पे कैसे व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशंस डिड यू गेट द एनिमल्स इन? मैं आपको बताता हूँ लॉकडाउन के। हाँ, मैं आपको बताता हूँ लॉकडाउन में क्या होता है ना, व्हीकल मूवमेंट कम हो जाता है, वो चीज 100% सही है। तो क्या होता है, डॉग जो एनिमल्स है ना, ग्रेजुअली उन लोग अभी जैसे जो रोड के साइड में सोते हैं ना, तो लॉकडाउन में उन लोग भी बिंदास होकर रोड के बीच में सो रहे थे। एंड क्या जैसे जैसे लॉकडाउन का डेट थोड़ा आगे जाते रहा ना, तो वैसे वैसे नया नया पासेस इशू होने लग गया। आप पकड़ लीजिए एसेंशियल ड्यूटीज का बहुत जन को पासेस मिल गया था। तो क्या रोड खाली होने की वजह से उन लोग गाड़ी और ज्यादा स्पीड चलाते थे। राइट। लॉकडाउन में एक्सीडेंट केसेस ज्यादा था। ओके। क्योंकि डॉग्स या जो भी उन लोग, क्योंकि लॉकडाउन के कारण जब मूवमेंट कम हो गया तो उन लोग भी रोड के बीच में या थोड़ा सा बीच में सोने लग गए। एंड गाड़ी सब देखा कि रोड खाली है तो फुल स्पीड में चलाते हैं। तो लॉकडाउन में एक्सीडेंट केसेस बहुत मिला हम लोग को। इनफैक्ट वी हैव पोस्टेड अबाउट इट इन आवर पेज एंड आवर एडमिनिस्ट्रेशन पेज अबाउट इट। Okay, so I guess you also you told me earlier that you also conduct awareness drives. Yeah. Can you tell us something about that? And I think we have also got a presentation, Priyanshu. I think we can present it in some time. Yeah. Yes. So Vineet, if you can first tell us about your awareness programs, and then we'll see the slides. अवेयरनेस प्रोग्राम का रहता है कि लाइक आवर फ्यूचर इज डिपेंडेंट ऑन द न्यू जनरेशन।
फ्यूचर जनरेशन। हम्म, तो बेसिकली हम लोग ट्राई करते हैं कि उनको एडुकेट करें ये चीज़ के हम्म, बारे में। तो हम लोग क्या है, लाइक on occasions like Holi, Diwali, we conduct awareness camps in schools and we go and teach the children, like क्या होता है ना, बचपन में आप देख रहे होगे जब आप क्रैकर्स बर्स्ट करते हो ना, तो कितना बार क्या होता है ना, कोई कोई बच्चे लोग जैसे कोई डॉग देखते हैं या काऊ देखते हैं तो उसके ऊपर स्पेशली क्रैकर्स फेंकते हैं उसको चेज करने के लिए। राइट, तो वो चीज़ के बारे में हम लोग उनको अवेयर करते हैं कि ऐसा ना करें, क्योंकि आज वो कहाँ जाएंगे ना। तो वो चीज़ का सेकेंडली हम लोग तो यही बोलते हैं कि क्रैकर्स आप बर्स्ट ही मत करो, क्योंकि आप एनवायरनमेंट को भी पोल्यूट करते हैं। प्लस क्रैकर इंडस्ट्री में सब इलीगली चाइल्ड लेबर करवाते हैं, तो उसको वैसे भी हम लोग प्रमोट नहीं करते हैं ना। अगर हम लोग बोलते हैं अगर आप करना ही है तो एटलीस्ट एनिमल्स को हार्म मत करो। एंड सेम होली में भी यही होता है। होली में भी आप देखते होगे कि रोड के जो डॉग्स है या काउस हैं उनको बहुत जन कलर्स लगा देते हैं। तो क्या हम लोग को कलर लगाने से वी कैन गो एंड वॉश इट, अप्लाई सोप, बट उन लोग क्या करेंगे। एंड एनिमल्स का क्या, स्किन बहुत सेंसिटिव होता है, तो उनको एलर्जीज और सब होने का चांसेस बहुत हाई रहता है। वही चीज़ का हम लोग को एडुकेट करने की कोशिश करते हैं कि ये सब काम ना करें। फिर दूसरे में हम लोग एडुकेट करने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है ना, लोगों को ये रहता है कि फॉरेन ब्रीड लेना है क्योंकि वो दिखने में ज़्यादा प्यारा लगता है या जो भी है। हम लोग यही एडुकेट करते हैं कि आप लोग फॉरेन ब्रीड लेते हो, इससे अच्छा इंडियन डॉग्स लो। पहला बात है आपको खरीदना नहीं होगा, आपका पैसा बचेगा। दूसरा में फॉरेन ब्रीड में मेंटेनेंस हाई रहता है क्योंकि वो दूसरे कंट्री का डॉग रहता है, वो आपके यहाँ आता है, एनवायरनमेंट में वो सूट होता है नहीं होता है, अडॉप्ट कर सकते हैं कि नहीं, तो बीमार होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। ये इंडियन डॉग्स रहता है तो उसके साथ मेंटेनेंस का उतना इशू नहीं है। और लॉयल्टी पॉइंट ऑफ व्यू मेरे को पर्सनली लगता है कि इंडियन डॉग ज़्यादा लॉयल है। तो आपका एनीवेज इंडियन डॉग से सारा चीज जो भी आपको डॉग से चाहिए या एनिमल से चाहिए जिसको पेट रखना चाहते हो, तो इंडियन ब्रीड्स आर मच बेटर। तो वो चीज का हम लोग अवेयरनेस करना चाहते हैं कि डोंट बाय, अडॉप्ट। Okay. So I think we have that slide, Priyanshu. If you can play that, and Yes. Vineet, maybe you can explain us about the slides and your awareness work. Yeah. So this is basically we started animal welfare on 23rd November 2018. Then this is our team. This not all the members, but like some of our members during the food drive. Okay. This is our team, and this is the food drive fix. You can see how we are doing the food drive. Was this during the lockdown? No, not just during the lockdown. Actually, we are not doing the food drive only during the lockdown. We have been doing it since 2 years, almost 2 years. Okay. But during lockdown, we used to do it every day. And in the left, you can see a guy with a red bucket. He's feeding dogs. His name is Subhaji. He's one of the most dedicated member we have. He has been feeding dogs every day. Like हमारे साथ भी जब ये फूड ड्राइव में जाता है ना, तो वो तो करता ही है। उसको छोड़ के इसके एरिया के आसपास में there are around 60 dogs. And he feeds them every day. Oh wow! So, like he is very dedicated member. And ये आपको दिख रहा है वो जैसे सेकंड पिक में ये बैक में, हाँ नेक्स्ट कर दीजिए। हाँ, ये भी आपको दिख रहा है फूड ड्राइव का फोटो है, हम लोग कैसे फीड करते हैं। एंड इन बिटवीन यू कैन सी गायत्री मेकिंग फूड फॉर द एनिमल्स। लाइक ये भी बहुत जरूरी होता है क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे क्या हुआ ना, रेस्टोरेंट और सब भी बंद थे, तो सबको घर पे बनाना होता रहा। एंड टू मेक अ फूड फॉर 250 to 300 एनिमल्स इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो हम लोग अलग अलग बैचेस में करते थे कि अराउंड 4 to 5 बैचेस फूड का बनता था, फिर हम लोग कलेक्ट कर लेते थे एक से एंड उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करते थे। ओके। ये हम लोग का फूड ड्राइव हो गया। ये हम लोग का रिफ्लेक्टिव कॉलर ड्राइव हो गया। एक्चुअली जैसे मैं आपको बोला था कि एक्सीडेंट्स के कारण ये हम लोग का मैक्सिमम केसेस एक्सीडेंट का होता है। ये एक्सीडेंट स्पेशली रात को ज्यादा होता है क्योंकि रात को क्या है, कोई अगर एनिमल रास्ते में सो रहा है तो दिखता नहीं है। तो हम लोग कोशिश करते हैं रिफ्लेक्टिव कॉलर ड्राइव करने का, ताकि रिफ्लेक्टिव कॉलर लगा देने से क्या, जब गाड़ी का हेडलाइट इन पे पड़ता है ना तो ये इट ग्लोज, इट रिफ्लेक्ट। तो इसके कारण हम लोग का एक्सीडेंट होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। तो हम लोग काऊ एंड डॉग इसका रिफ्लेक्टिव कॉलर ड्राइव करते रहते हैं बीच में। तो ये आपने कब किया था, ये रिफ्लेक्टिव कॉलर ड्राइव? रिफ्लेक्टिव कॉलर हम लोग अराउंड 1 साल से कर रहे हैं। ओके, तो 1 साल पहले आप लोग लाइक यू स्टार्टेड आउट इन 2018 एंड यू स्टार्टेड
You started On- this drive in 2019, around 2019, somewhere in 2019. the middle of 2019. Yes. After somewhere- that, what kind of difference did you notice? Has the animal, accident cases come down? Have the animal accident cases come down? It has. How a much little, has it come down? 20% maybe. Okay. एक्चुअली क्या होता है ना, बहुत लोगों को ये दिखने के बाद भी दे डोंट स्टॉप देयर कार, मतलब दे डोंट स्लो डाउन, स्पेशली व्हेन दे आर ड्रंक एंड ड्राइविंग, सो दैट इज एन इशू. हम लोग अपने एंड से कोशिश करें कि रिफ्लेक्टिव कॉलर लगा दिया तो उनका एक्सीडेंट ना हो, बट कोई सैडेस्ट पीपल होते हैं जो कि जानबूझ के जाके उनको करते हैं एक्सीडेंट, तो वो केस में ये कॉलर काम नहीं आता, स्पेशली जब वो रात के टाइम में ड्रंक रहते हैं ना, ड्रंक एंड ड्राइव का केस बहुत होता है. Okay. So till now we have approximately rescued 1000 plus animals. हम लोग ने 400 प्लस एडॉप्शन करवा चुके हैं, 1000 प्लस रिफ्लेक्टिव कॉलर्स लगा चुके हैं. बट हाँ, ये 1000 प्लस रिफ्लेक्टिव कॉलर्स लगाए तो ये नहीं है कि 1000 से ज्यादा एनिमल्स को लगाए. रिफ्लेक्टिव कॉलर्स के साथ भी क्या सीन होता है ना यहाँ पे, लाइक हम लोग स्ट्रेज को रिफ्लेक्टिव कॉलर लगाते हैं, यहाँ देखा जाता है कि लोग उनको खोल देते हैं, खोल के अपने घर के डॉग्स में को लगा देते हैं. Why? What's the point? I don't know this mentality, why they are doing like this. They can ask from us, we'll just provide them. And reflective collar is for the stray animals, not for आपके घर के कुत्ते के लिए. But पता नहीं लोगों, मैं कितनी बार देखा हूँ. If you can afford to, keep a dog, if you can afford to maintain a dog, you can surely buy a collar. Yeah. But पता नहीं, यहाँ होता है ना, फ्री का चीज सबको पसंद है, तो ऐसा देखा जाता है. मैंने काफी बार देखा है ये चीज. लाइक एक पर्टिकुलर एरिया के डॉग्स को मैं रिफ्लेक्टिव कॉलर बनाया हूँ कि आफ्टर 4-5 डे देखता हूँ कि 50% के यहाँ कॉलर है ही नहीं. तो वो जो 50% के पास कॉलर नहीं, उसमें ये हो सकता है कि 30 to 40% आपस में डॉग फाइट होते हैं ना, उसके बीच के दौरान खुल जाते हैं. बट जो बाकी जो नहीं रहते हैं, मिसिंग रहते हैं, वो कोई ना कोई खोल के ले जाता है. तो मैं खुद कितनी बार देखा हूँ कि लोग वॉक करा रहे हैं अपने पेट डॉग को एंड उनके गले में हमारा रिफ्लेक्टिव कॉलर लगा. तो आपने कभी कन्फ्रंट किया है ऐसे लोगों को? फायदा नहीं, वो बोलेंगे कि मैं लाया हूँ, एंड वैसा होता है ना, तो लोग फट से अग्रेसिव हो जाते हैं, तो फिर फायदा नहीं होता उनके मुंह लगने, क्योंकि व्हेन दे कैन नॉट अफोर्ड टू बाय रिफ्लेक्टिव कॉलर, तो वो आदमी से आप आर्ग्यू करना भी फायदा नहीं है, उनके लेवल में जाना होगा आपको, फायदा नहीं है. Correct. Maybe you can, imprint the reflective collars that you use. उसको शायद imprint कर सकते हैं आप हाँ आपके ऑर्गेनाइजेशन के नाम से. हाँ, अभी से हम लोग वो सोच रहे हैं कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है वो कॉलर्स में प्रिंटेड रहेगा. तो अभी जो हमारा नेक्स्ट लॉट आएगा रिफ्लेक्टिव कॉलर्स का, उसमें हमारा ऑर्गेनाइजेशन का लोगो प्रिंटेड रहेगा. ओके. तब ये चीज में थोड़ा बेटर होगा. ओके. एंड अभी तक हम लोग अराउंड 50,000 प्लस एनिमल्स को फीड कर चुके हैं, लाइक इसके टेन्यूर में हम लोग. एंड ये एक बहुत स्पेशल केस था हमारा. इसका नाम था लालू, मतलब नाम है लालू. इसका कैंसर हो गया था, स्किन कैंसर. आप देख सकते हो लेफ्ट के 2 फोटो में इसका स्किन का क्या कंडीशन है. तो लाइक इसका ट्रीटमेंट, मतलब इसका मेरे को एक टाइम के बाद लगा नहीं था कि ये ठीक होगा, मतलब बट हम लोग कोशिश करते रहे, तो लाइक आफ्टर 4 मंथ ये रिकवर हो गया. तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि इसका ठीक होना, क्योंकि मेरे को एकदम नहीं लगा था कि ठीक होगा. एंड आप राइट साइड के फोटो में देख सकते हो, इसका कोई भी वुंड नहीं है. राइट. इट्स कंप्लीटली हील्ड. हाँ, एंड अभी हैप्पीली ये जो एरिया में रहता था, जहाँ से हम लोग इसको लाए थे, वापस वहाँ पे छोड़ दिए, एंड वहाँ पे हमारा एक मेंबर रहता है एंड दे लुक आफ्टर हिम. तो अभी ये हैप्पी है, एंड अभी वो एरिया का काइंड ऑफ डॉन बना हुआ, अल्फा डॉग मेल बना हुआ. अच्छा, ऐसे कोई और इंटरेस्टिंग केसेस हैं जो लाइक यू थॉट ओके दिस इज वी कांट salvage this dog can't be saved, or this animal can't be saved, but then it made a miraculous recovery? हाँ, ऐसा काफी इंसिडेंट हुआ है हमारे साथ. जैसे एक तो ये लालू हो ही गया, उसके बाद हमारा एक भोलू बोल के डॉग था, उसका एक्सीडेंट हुआ था ना, मैं आपको क्या बताऊं, उसका जो चेस्ट का एरिया है ना, पूरा एक्सपोज हो गया था. इनफैक्ट आप उसका हार्ट जो पंप हो रहा है ना, वो तक आपको दिख रहा था. तो हमें लगा नहीं था वो बच जाएगा, बट थैंकफुली वो रिकवर हो गया. बट प्रॉब्लम ये हुआ, रिकवर होने का अराउंड
2 to 3 months बाद उसका अचानक से डॉक्टर भी नहीं बता पाए उसका क्या इशू हुआ था, बट डॉक्टर के हिसाब से उसको रेबीज हो गया था उसके बाद। तो फिर वो ओहो। रेबीज से उसका डेथ हो गया। बट जो एक्सीडेंट के बाद जो सर्वाइव का बात था, जो हमें लगा नहीं था होगा, वो हो गया था वो। बट बाद में पता नहीं रेबीज का कैसे उसको होके वो हो गया। तो वो भी एक ओके। मिराकुलस केस अचीवमेंट हमारे पास। एंड और काफी सारे केसेस है उस टाइप का। ये आप देख सकते हो रस्ती, इसको हम लोग अराउंड 2.5 मंथ्स बैक ही रेस्क्यू किए थे। आप लेफ्ट के फोटोज में देख सकते हो उसका स्किन का क्या कंडीशन है। इसको राइट। स्केबीज का इशू था। इसका पूरा स्किन एकदम आपका जगह जगह से ब्लीडिंग भी हो रहा था इसका स्किन से। एंड ये देखिए ये फोटो जो राइट साइड वाला फोटो वो आज का ही है। अभी कुछ देर पहले ही मैं ये फोटो क्लिक किया था। ओके। अभी इसका 70 to 80% ठीक हो गया। Nearly healed, yes. हाँ, आफ्टर 1 or 2 weeks वो हम लोग इसको वापस से जहाँ से लाए थे वहाँ रिलीज कर देंगे। तो ये Okay. भी हमें लगा नहीं था इतना जल्दी रिकवर होगा, बट ये भी हो गया। फिर ये है रॉकी, इसका बहुत सैड स्टोरी है। रॉकी को हम ये आपके क्या बोलूँ एक फैमिली है डिब्रूगढ़ की, मैं उनका नाम नहीं बोलना चाहता हूँ। उनका ये पेट डॉग था। तो दे केप्ट रॉकी फॉर 15 years इन देयर प्लेस। एंड उसके बाद आप देख सकते हो ऊपर का लेफ्ट वाला फोटो में उसका एक वुंड हो गया था। तो वुंड होने के बाद इसका बॉडी में मैगेट्स बहुत हो गया था। तो मैगेट जब हो जाता है ना तो एक गंदा स्मेल आता है। बट इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, ये ठीक हो जाता है। बट दे डिड नॉट डू एनीथिंग। उन लोग कुछ दिन इसको रखा एंड देखा कि और ज्यादा स्मेल कर रहा है, तो इसको अबंडन कर दिया। बट उन्हीं का एक फैमिली मेंबर है जो कि बॉम्बे में, शी इज एन एनिमल एक्टिविस्ट, शी केम टू नो अबाउट दिस थिंग। तो वो मेरे को कॉल किया एंड मेरे को बोले कि ऐसा ऐसा है। मेरे को मालूम पड़ा है कि ये लोकेशन में छोड़े हैं मुझे। एंड उसका एक जिस दिन उसको छोड़े थे ना, उस दिन यहाँ पे बहुत जोर का बारिश आ रहा था। उसका 2 दिन बाद तो यहाँ टोटली फ्लड आ गया था। बट उस दिन नॉन स्टॉप बारिश हुआ था। तो मेरे को बहुत चांसेस कम लगा था कि वो मिलेगा, क्योंकि उसको लास्ट नाइट छोड़ा है, होल नाइट बारिश हुआ है, तो निमोनिया के कारण इसका डेथ हो गया होगा। एंड दूसरे में इतना बड़ा हाईवे है जहाँ पे छोड़ा, तो ये तो कोई एक जगह में रहेगा नहीं। अगर ये बारिश से बचना चाहता है ये शेड में जाएगा, एंड हाईवे में तो कोई सामने शेड रहता नहीं, तो ये कहीं फील्ड वील्ड में जाके छुपा होगा। तो मेरे को चांसेस इसका बहुत ही कम लगा था कि ये मेरे को मिलेगा। बट थैंकफुली मैं गया तो देखा ये वॉक कर रहा था हाईवे के साइड में एंड बारिश में भीग रहा था। तो आप देख सकते हो लेफ्ट के जो नीचे जो फोटो है उसको मैं लेके आ रहा हूँ। फिर अभी आप देख लो इसका राइट में फोटो, ये अभी पूरा ठीक हो गया। ये अभी मेरे यहाँ अराउंड 4 मंथ से है एंड मेरे को लगता नहीं इसको कोई अडॉप्ट करेगा। इसका ओनर को हम लोग कॉन्टेक्ट किए थे कि अब ये ठीक हो गया, अब आप इसको रख लो, बट दे आर नो मोर इंटरेस्टेड इन टेकिंग हिम बैक। तो अब फिलहाल ये मेरे घर पे ही है एंड ये मेरे साथ ही रहेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 15 ईयर्स इसका। अब इसका लाइफ एक्सपेक्टेशन ज्यादा तो है नहीं, कम से कम जितना टाइम है आई विल ट्राई टू कीप हिम हैप्पी। ये बट एक बहुत बड़ा इशू आ जाता है। मतलब मेरे को लगता है कि लोगों को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए एनिमल्स, जब तक वो श्योर ना हो कि उसको अपने बच्चे के जैसा रख सके। लोगों को क्या होता है ना, अडॉप्ट कर लेते हैं, 1-2 साल के बाद दे गेट बोर्ड। या बहुत जन होते हैं कि जिनका बच्चा लोग लाइक किड्स दे आर लाइक पापा मेरे को डॉग चाहिए एंड उसके शौक के लिए ले आते हैं। एंड फिर 1-2 साल के बाद जब बच्चे का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है तो दे अबैंडन द डॉग और दे जस्ट केज इट इन। तो वो चीज नहीं करनी चाहिए। आप जब लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट दे सकते हो तभी आप अडॉप्ट करो या खरीदो डॉग को, वरना आपको ऐसे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इनका भी एक फीलिंग होता है ना। आज ये रॉकी का ही आप देख लीजिए, 15 ईयर ये वो घर पे रहा, तो आज अब ये अपने लास्ट लाइफ का लास्ट स्टेज में आ गया। अभी तो ये चाहेगा ना कि अपने फैमिली के साथ रहे। तो इसका भी मेंटल स्टेट आप सोचिए कैसा होगा। 15 ईयर्स एक घर पे रह के अभी मेरे यहाँ है, तो चाहे अभी मेरे यहाँ ठीक से ही है बट फिर भी अपने फैमिली को तो मिस करता होगा ना, क्योंकि डॉग्स के लिए 15 ईयर्स इज लाइक 90-95 ईयर्स। करेक्ट। तो वही है कि आप लोग, मतलब लोगों से मेरे को यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसे अडॉप्ट या मत रखिए एनिमल्स, अगर आप लोग लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट नहीं दे सकते हो। अगर दे सकते अभी हो, जो रॉकी आपके साथ है तो डज ही शो एनी पैंग्स ऑफ एंजाइटी या फिर कोई ऐसा एविडेंट साइंस है कि वो अपने फैमिली को मिस करता है? हाँ, उसका ज्यादा मूवमेंट रहता ही नहीं है। जब मैं उसके पास जाता हूँ ही कम्स नियर मी, ही वैग्स हिज टेल, ही जंप्स ऑन मी, बट उसके बाद
एक रूम में ही वो बैठा रहता है, उसका कोई एक्टिविटी नहीं है, ये वो बस खाना खाता है एंड दैट्स इट, वो सोते रहता है, उसको कुछ नहीं, वो मतलब बस अपनी जिंदगी का लास्ट पार्ट होता है ना, काट रहा होता है कि बस जीना है तो खाना खाना है, बस उतना ही है उसको। उसको मैं वॉक में भी ले जाता हूँ तो ही डजंट वांट टू गो फॉर अ वॉक, बहुत जल्दी टायर्ड भी हो जाता है। तो उसको देख के मालूम पड़ता है कि इज नॉट हैप्पी, बट ठीक है, बस रहना है तो रह रहा हूँ। हाँ, जैसे कि डिब्रूगढ़ में मेरे को जितना लगता है, मैं ये श्योर नहीं हूँ, जस्ट माई आइडिया, देयर आर अराउंड 3000 स्ट्रे एनिमल्स इन डिब्रूगढ़, आउट ऑफ विच एवरी डे 10 एटलीस्ट मरता ही है एक्सीडेंट के कारण। आप इसमें इसमें मोस्टली डॉग्स एंड काऊ का ज्यादा होता है, एंड आपका लॉकडाउन की वजह से भी अराउंड 30% या मोर देन 30% ऑफ स्ट्रे एनिमल्स हैव डाइड, दैट्स व्हाट आई फील। ओके। एंड आपको मतलब जैसे कि आज किसी के घर पे डॉग रहते हैं, या घर का डॉग छोड़िए, रास्ते में भी अगर कोई डॉग का एक्सीडेंट होता है ना, तो क्या होता है ना, यहाँ का म्यूनिसिपलिटी वर्कर उनको लेके जाके डंप कर देते हैं, जहाँ गार्बेज डंप करते हैं। तो ये एक बहुत ही सैड चीज है कि आप उनको जीते जी तो रिस्पेक्ट नहीं किए हो, बट जब उनका जो लास्ट टाइम रहता है उसमें उनको रिस्पेक्टफुली हम लोग को गुड बाय बोलना चाहिए। तो हमारे डिब्रूगढ़ में अभी ऐसा कोई प्लेस नहीं है जहाँ की आप उनको विद रिस्पेक्ट आप उसको कर सके, गुड बाय बोल सके। तो वो अभी हम लोग के डिब्रूगढ़ के लिए इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग विच वी नीड। क्योंकि अगर आज मेरे ही घर का 2 डॉग है, सपोज करिए, अगर खुदा ना खास्ता उनका कल को कुछ होता है, आई हैव नो प्लेस टू उनको फाइनल गुड बाय बोलने के लिए। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट, अभी हमारे साथ नंदिनी भी जुड़ी हुई हैं, तो नंदिनी से भी कुछ महीने पहले मेरी बात हुई थी। तो शी इज वर्किंग टू गेट एन एनिमल क्रेमेटोरियम इन गुवाहाटी, जहाँ पे एनिमल्स को हम डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। तो कुछ चैलेंजेस है, तो इज देयर एनी काइंड ऑफ मूवमेंट डिब्रूगढ़ में कि आप लोग ऐसा कुछ ट्राई कर रहे हैं कि स्ट्रे एनिमल्स को डिस्पोज ऑफ करने के लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक फैसिलिटी इंस्टीट्यूट हो? अथॉरिटी से आपने कोई बात की है? हाँ, अभी तक बात नहीं हुआ, बट बीच में हम लोग सोचे थे ऐसा करने का। आप शायद देखे होंगे, एक डिब्रूगढ़ का वीडियो वायरल हुआ था, जहाँ पे एक बाइक एक डॉग को रस्सी से बांध के ड्रैग करते हुए लेके जा रहा था, डेड डॉग को। जी जी। हाँ, तो उसके बाद हम लोग सोचे थे कि ये काम करने का, क्योंकि आज वो आदमी जो किया ये तो बहुत ही गलत किया, बट आज वो डॉग का होता क्या, मतलब म्यूनिसिपलिटी वर्कर्स भी उनको ले जाते तो ले जाके डंप कर देते ना कहीं। तो हम लोग सोचे थे कि एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने का ये चीज को लेके कि आप लोग एक ग्राउंड प्रोवाइड करो डॉग्स के लिए या एनिमल्स के लिए, जो स्ट्रे एनिमल्स मरते हैं ना, उसको कम से कम ये प्रॉपर हो उसका। बट फिर हम लोग सोचे कि हम लोग का क्योंकि अब एनजीओ रजिस्टर हो ही रहा है, एंड हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को कांटेक्ट करेंगे कि हम लोग को शेल्टर होम के लिए स्पेस चाहिए, तो तभी हम लोग सोच रहे हैं कि उसी के साथ सिमेट्री का भी काम वहीं पे कर लेंगे। Instead of a cemetery, do you think that a crematorium would be more space saving alternative? हाँ, वो भी है। एक्चुअली अभी तक हम लोग ये चीज़ में प्रॉपर्ली वर्कआउट नहीं किए, बट हाँ, वो चीज़ मच बेटर रहेगा क्योंकि उससे स्पेस कम होगा यूज। वो चीज़ हम लोग करेंगे, मतलब वही अभी एक बार हम लोग को शेल्टर होम का स्पेस मिल जाए ना, उसके बाद हम लोग वहाँ पे कैसे ये चीज़ कर सकें, वो चीज़ हम लोग वर्कआउट करेंगे। बट जो भी है, ये चीज़ अभी आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहिए हम लोग को, एंड एडमिनिस्ट्रेशन भी खुद भी अगर ये चीज़ करे तो इट विल बी वेरी गुड, क्योंकि ह्यूमंस का तो है यहाँ पे। आपने कहा था कि administration is very active whenever you need help and all. So how active is the administration, the civic administration in Dibrugarh while disposing of strays, dead animals? डिस्पोजिंग ऑफ स्ट्रेज के लिए मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें मेरे को ऐसा कुछ नहीं दिखा कि इन लोग कर रहे हैं कुछ भी। इसमें तो बस ये है कि सिविक वर्कर्स जहाँ भी देखते हैं ऐसा है, उसको ले जाके अपने उसी में अपने जो गाड़ी होते हैं ना, डंप, वो जो वैन या जो ट्रक होते हैं उसमें डाल के डंप यार्ड में जाते हैं। हाँ, डंप यार्ड में जाते हैं, वहीं पे जाके डंप कर देते हैं। तो ये एंगल से मैं नहीं बोलूंगा हम लोग एक्टिव है,
इसके लिए अभी तक कुछ नहीं हुआ है। Okay, okay. Priyanshu, if you can move to the next slide. Okay, so we've come to the end of the slide. Okay, विनीत, आपसे एक और मैं बात जानना चाहता हूँ कि अभी दिवाली, दुर्गा पूजा आ रही है, तो आपने कहा था कि आप स्कूल्स में भी अवेयरनेस ड्राइव करते हैं। तो अभी तो फिलहाल पैंडेमिक की वजह से स्कूल्स एंड ऑल बंद हैं। हाँ। तो अभी दिवाली, दुर्गा पूजा, लेकिन सेलिब्रेशन आई एम श्योर कि चालू रहेगा, हाँ। फुल फ्लेजेड ऑलमोस्ट, ठीक है, गोइंग बाय द एंथुसियाज्म, बिकॉज लोग भी अभी बहुत महीनों से बंद है घर पे, दे नीड एन रीजन टू सेलिब्रेट, सो ऑफ कोर्स दे विल सेलिब्रेट। So as you said, कि there are instances of people, bursting crackers, and this poses a risk of injuring the animals. So अभी आप लोगों का अवेयरनेस जो ड्राइव है, इसको आप लोग कैसे हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल्स बंद है? हाउ आर यू रीचिंग आउट टू पीपल एंड स्पेशली द किड्स? जैसे दुर्गा पूजा में तो ये जरूरत होगा, अभी तो इसकी जरूरत होगी। हाँ, मतलब अभी दुर्गा पूजा में अवेयरनेस स्कूल का चिल्ड्रंस के लिए नहीं चाहिए हमें, क्योंकि दुर्गा पूजा में क्रैकर्स का इशू नहीं आता है। दुर्गा पूजा में इशू आता है जो एनिमल सैक्रिफाइस करते हैं। तो उसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे ऑनलाइन जितना हम लोग कर सके एडुकेट पीपल को, कि आप लोग सैक्रिफाइस जो करते हो, कभी भगवान आपको नहीं बोलता कि आप कोई मेरा ही लिविंग थिंग को आप सैक्रिफाइस करो, उससे मैं खुश हूँगा। उसकी जगह सैक्रिफाइस आपको अपने ईगो को करना चाहिए, या आपके अंदर आपके जो गलत क्वालिटीज होते हैं उसको करना चाहिए। तो वो चीज़ के लिए हम लोग कोशिश करेंगे लोगों को एडुकेट करें कि प्लीज आप लोग सैक्रिफाइस मत करो कोई एनिमल्स का इन द नेम ऑफ गॉड। दुर्गा पूजा में तो यही रहेगा हमारा, क्योंकि दुर्गा पूजा में क्रैकर्स या उस टाइप का सीन नहीं रहता है। एंड आई थिंक बाय जब तक दिवाली होगा तब तक स्कूल्स खुल जाएंगे। एंड अगर खुलते नहीं भी है तो अभी क्या स्कूल का सबका ऑनलाइन चल रहा है क्लासेस, तो वी कैन अप्रोच स्कूल एंड वी कैन टेल देम कि प्लीज एक क्लास हमें भी लेने दे दो स्टूडेंट्स का। ऑनलाइन हम लोग कोशिश करेंगे उनको समझाने का कि प्लीज आप लोग क्रैकर्स मत बर्स्ट करो, एंड करते भी हो तो उसके कारण कम से कम एनिमल्स को आप लोग हर्ट मत करो उससे। तो उस तरीके से ऑनलाइन वे में हम लोग सोचेंगे करेंगे। Okay. So I have one more question for you, but before that, I would like to inform our viewers. Please post your questions on Facebook and here as well on Zoom. If you have any question for Vineet, he would be happy to answer. Please, feel free to post it, or just let me know so that we can stop the discussion here, and then we can open a one-on-one with Vineet. So Vineet, मेरा आपसे सवाल ये है कि अभी जो लॉकडाउन या फिर पैंडेमिक की वजह से ऑफ कोर्स गैदरिंग कम हो गए हैं, और आपके ऑर्गेनाइजेशन का एक मेन काम रहा है अवेयरनेस, स्प्रेडिंग अवेयरनेस। पहले 2018 से 2019 तक ये जितना समय रहा, आप हमेशा लोगों से मिलके फेस टू फेस अवेयरनेस करते थे, और अभी ऑनलाइन शिफ्ट हो गया है। So how do you feel this difference, this online shift has affected the awareness work? मैं फील करता हूँ कि ऑनलाइन में ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ था ना, तो मैक्सिमम पीपल वर एट देयर होम, दे हैड नथिंग टू डू। तो उस समय जो हम लोग जो भी ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू जो भी हम लोग अवेयरनेस का काम किए ना, उसको ज़्यादा व्यूज मिला, एंड ज़्यादा उस समय क्योंकि लोग फ्री थे, तो दे कुड एक्चुअली वॉच आवर थिंग, वॉट एवर वी वर डूइंग एंड रिलेट टू इट। एंड हमने देखा काफ़ी डिफरेंस, जैसे हमने बहुत को अपील किए थे कि आप लोग अपने घर के बाहर के जो एनिमल्स होते हैं ना, उनको आप लॉकडाउन की वजह से बाहर नहीं जा सकते हो, पर एटलीस्ट घर के सामने का जो एनिमल्स उसको तो खिला सकते हो, फीड कर सकते हो। तो वैसा मेरे को डिब्रूगढ़ में दिखने को बहुत मिला। बहुत लोग हैं जो कि ये काम करना स्टार्ट कर दिए थे, तो काफी इम्पैक्ट पड़ा ऑनलाइन में, क्योंकि फिजिकली आप जब करते हो जब तो हार्डली वहाँ 40, 50, 100 लोग होते हैं, बट ऑनलाइन में आपके पास जो प्लेटफॉर्म रहता है, हम लोग का एक व्यूज जाता है अराउंड 10,000, 15,000, कोई व्यूज तो लाख क्रॉस कर दी। तो ऑनलाइन में आप एक बहुत बड़ा एरिया को कवर कर सकते हो। So I feel online is any day better than practically doing it. And have you been able to reach out to kids online?
Yes. हाँ And what has been the impact? लाइक हम लोग फूड ड्राइव वो सब करते थे ना. What has been the response and impact? हाँ, तो जैसे हम लोग फूड ड्राइव वो सब करते थे, तो एक इंस्टेंस मैं आपको बताता हूँ. मेरे घर के सामने नहीं, मैं एक जन को जानता हूँ. तो वो मेरे को एक दिन फोन किया एंड बोला कि विनीत, मेरा बेटा है, वो तुम्हारा फेसबुक में फॉलो करता है, एंड वो मेरे को आज ऑर्डर किया कि पापा आप दो कार्टन बिस्किट ले जाके विनीत भैया को देना, कि विनीत भैया जाके एनिमल्स को फीड कर सके. तो हेलो हेलो. Hello? Yeah, we can hear you. Vineet, can you hear me? हाँ या तो वो अपने पापा को, उनका जो बेटा है, छोटा बेटा था, तो वो अपने पापा को बोला कि पापा आप 2 कार्टन बिस्किट लेके विनीत भैया को देना, ताकि उसके एनिमल्स को फीड कर सके. इम्पैक्ट पड़ा बच्चों पे, तभी वो अपने पापा को बोले कि Okay. So I'll just throw open the floor, and if anyone has a question for Vineet, please feel free to ask. Hi, Vineet. This is Milan. Hi Milan sir. Hi, good evening sir. Hi. Sorry, I was a little late because I had a panel discussion going on, so that got delayed. So I'm going to ask you a few questions, and if you have already replied, say that you replied, because I'm going to go back and look at your video. All right. Okay, My question would be like, so I would like to know what is your organization's strength? When did you start? How many you have rescued? And how do you raise funds? Already, if you have covered all this, then just say covered. I'm going to look. Yes, he has covered all this actually. We have covered all this. Okay. All right. So anything? Only one thing though, but tell me, how many years are your organization active? This November we'll complete 2 years. Hello. Yeah. So we have been working with Nandini over here. You know, and we are trying to structure. And one thing we realized that most organizations at least in Assam or in Guwahati, they are passionate people. They're going and doing work in the field, right? Rescuing, but not necessarily documenting it. All right. Or have a structure. I don't know about your organization. Do you have structure? Do you have, or how many people involved, or is it a one-man army? No, sir. In our organization, that is not the case. We have divided our work. Like, there are few members who are doing the rescue work. Some are doing the this paperwork, like posting of things that we are doing. Some are looking after the adoption things. So we have structured that thing. We have a proper structure. And you have documentation. You have a website. You have all that too. We have a domain name, but we haven't created the website yet, because actually it's like we did not do it till now, but we'll do it. Okay. Because that's what we are doing. I see Zakia is also there. Zakia live in New York, and she's also helping us. So, and since we are getting the information from US and comparing, so once we work with Nandini, we also would like to work with other organizations so that we can provide advice or help, because we maybe structured poppers. After poppers is done, we'd like to work with other organizations, because it's more that knowledge we share, whatever information we have. For example, right now we have compiled all the Zakia have compiled all the document about basic medical or handbook for a cat. For example, I rescued 2 stray dogs, and every time I had to go on asking Nandini, oh, what do I do for skin? What do I do for deworming? How everything she's patiently writing. But if we have a document, you can just give the document that, okay, this had basic stuff, how to take care of a kitten or dog. So stuff like that. We also would like to work with your organization and just provide feedback, like, hey, what do you have, you can use this and all that. So that is one thing that we would love to do in the future. Yes, sir. We also will love to do this with you, sir. All right, thank you. Thank you, sir. Vineet, one thing you mentioned that you rescued reptiles as well. Can you tell us something about that section? Like what kind of reptiles you rescued and what were the conditions that the reptiles were found in? Actually, reptiles, it was snakes. So basically, whenever we get calls for snakes,
We ask the forest department to do that. So they rescue the snake and they then take it to a safe place and they release the snake. Okay. Okay. So you basically facilitate the rescue operation. Yeah. Because actually we are not trained to do that. Correct. So, Correct. but we have a member who does this, who used to do this, but then keeping the risk of his life in mind. So we have stopped doing that. Or before we had a member who used to do this, but now we have asked him not to do this because if something happens, then it will be a big issue. Correct. If anyone else has any question for Vineet? Yeah, I had a question. Can you hear me? Yes. Yeah. So I just want to know, just आपने awareness के बारे में बोला, like you have been doing this for 2 years. So can you see people adopting indie dogs, Yes. like in the world? हाँ. मतलब starting when we started ना, that time से अभी तक you can say there's been a vast difference. Like हम लोग जब भी पोस्ट करते हैं ना कि इंडी डॉग के पपीज के लिए अडॉप्शन के लिए, तो पहले इतना रिस्पांस नहीं आता रहा, बट आजकल बहुत रिस्पांस आता है. Like people really want to adopt Indian dogs now. So do you think it's a trend or something, or it's really compassion towards the animal? It's compassion towards the animal. आप इसको थोड़ा बहुत ट्रेंड भी बोल सकते हो, बट विद ट्रेंड इसके साथ कंपैशन भी, क्योंकि क्या होता है ना, आप अगर कोई एनिमल को अगर अडॉप्ट करते हैं, लाते हो अपने घर पे, तो विद इन 6 मंथ्स ऑफ पीरियड आपका उसके साथ एक अटैचमेंट हो जाता है. उसके बाद भले आप उसको अडॉप्ट किए हो कुछ ट्रेंड की वजह से, बट आपका अटैचमेंट हो ही जाता है उनके साथ. ओके, थैंक यू. और फिर कुछ रहते हैं जो कि अडॉप्ट करके भी फिर अबैंडन कर देते हैं. Yeah, you mentioned one of the cases, Rocky, I guess his name was, right? Yeah, Rocky, yeah. Yeah, most of the posts I saw, like people asking कौन सा मेल है या फीमेल है, like जेंडर प्रॉब्लम भी होता है ना. ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. यहाँ कोई फीमेल डॉग्स अडॉप्ट नहीं करना चाहते, कोई भी नहीं चाहते. सबको चाहिए कि मेल डॉग ही चाहिए. मेरे को पता नहीं लोगों का ये मेंटालिटी कब चेंज होगा. हमारे मोस्ट मतलब फीमेल डॉग्स को हमें अडॉप्ट कराने के लिए बहुत मुश्किल होता है. एंड बेसिकली हमें तो अबंडेंट पपीज मिलते हैं ना स्ट्रीट में. तो क्या होता है, अगर कोई मदर का लेटर होता है ना, तो उससे मेल डॉग्स को तो वो रख लेते हैं, फीमेल डॉग्स को रोड में अबंडन कर देते हैं. So do you think it's only the Indian dogs or all the dogs? Because क्योंकि बाकी ब्रीड्स बिजनेस होता है, ऐसा कुछ होता है. हाँ, बाकी ब्रीड को उन लोग, फीमेल को तो उन लोग चाहते कि रहे, ताकि उसका जब पपीज हो तो उसको सेल कर सके, एक बिजनेस बना सके इसको. तो इंडियन डॉग्स का ही जो फीमेल होता है ना, उसी को उन लोग अबंडन करते हैं. So what do you think are your future plans for the organization? अभी फ्यूचर प्लान तुम्हारा एक ये है कि हमें एक शेल्टर होम बनाना है. शेल्टर होम के साथ उनका जो लास्ट राइट्स का भी है वो भी कस्टडी रखना है. सेकेंडली हम लोग को अभी जो करना है ये स्टाइलाइजेशन ड्राइव, क्योंकि मेरे को लगता है कि स्टाइलाइजेशन ड्राइव इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग विच वी कैन डू फॉर द स्टे एनिमल. क्योंकि जब तक आप पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं करते हो तब तक आप उनका भला नहीं कर सकते हो, क्योंकि जितना जैसे जैसे उनका पॉपुलेशन बढ़ेगा वैसे वैसे रेस्क्यू केसेस आते रहेंगे. बट एक बार पॉपुलेशन को कंट्रोल में आप ले आओ ना, तो अपने आप उनका रेस्क्यू केसेस भी कम हो जाएगा, उनके साथ अब्यूजेस भी कम हो जाएगा. तो स्टाइलाइजेशन करने का हमारा नेक्स्ट स्टेप वो. Yeah, thanks a lot. Yeah, thank you. Okay, I think Zakia has a question. Zakia, if you can just turn on your mic. Yes. Hi, Vineet. Hi. It's so nice to hear. Like, I'm so happy to hear that whatever you are doing in Dibrugarh, it is really very appreciable, and also to your volunteers, whoever have been doing feeding the dogs, especially in the lockdown, because in the lockdown, especially when restaurants are closed, everybody's inside home, dogs are not getting to eat food. But this is a very great initiative you guys are doing. Thank you so much. Thank so you. I have a question for you. Like at many times when their abuse is going on, so we need the police to come, right? Have you ever faced like the police, they don't want to come because they are, many times they say that ek khujli wala kutta hai, kyun aap iske piche pade ho? So I had faced those kind of things like earlier. So I want to know, like, how are the police active now in Dibrugarh? Did you face a problem like that?
मैं आपको बताता हूँ कि लाइक जब हम लोग ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किए थे ना, दैट जी। टाइम वी हैड टू फेस दिस प्रॉब्लम, लाइक पुलिस वर नॉट दैट एक्टिव। बट मैं आपको बोल सकता हूँ कि लास्ट 1 ईयर से यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, दे आर सुपर एक्टिव। ओके। हम अगर एक ट्वीट भी कर देते हैं ना उनको, लाइक कि यहाँ पे एक डॉग को अब्यूज कर रहे हैं, दे इमीडिएटली टेक एक्शन। या हम थोड़ा दिन पहले आप देखे होंगे कि एक वीडियो भी वायरल हुआ था डिब्रूगढ़ में, जहाँ एक बाइक चला रहे हुए आदमी एक डॉग को पीछे बांध के ड्रैग कर रहे थे। तो पुलिस यहाँ उसके लिए जी जी बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिए हैं उसके लिए, इमीडिएटली उसको जी। अरेस्ट कर लिए। तो डिब्रूगढ़ में ये चीज़ का प्रॉब्लम अब फिलहाल तो नहीं है, लाइक पुलिस आर रियली डूइंग गुड जॉब। एंड उनको ये नहीं है कि ये ह्यूमन है या ये एनिमल है, तो एनिमल है तो इसको छोड़ो, रहने तो बाद में देखा जाएगा, वैसा नहीं है। यहाँ का Correct. पुलिस काफी एक्टिव है ये चीज में। So they are taking a crime as a crime, whether it's animal यस or यस human, right? यस यस Yes. दे आर डूइंग So that is what big concern in many a times I have when I was doing like I was not associated with any shelter or something, just doing myself. So मैं जब भी जाती हूँ like some years ago, so वो लोग मुझे ऐसे ही बोलते हैं like खुजली वाला कुत्ता है, why are you behind him? I said that people are abusing him. No, they are not really interested. But it's so nice to hear that since a year they are active, and I hope that the other districts in Assam also being doing the same thing. I think they Like are doing like 4-5 days back. Got a call from Nagaon that there is a okay, horse who has been abandoned and his leg has been broken. So from okay, Dibrugarh I cannot do anything, but I tweeted the correct. police of Nagaon, and they immediately replied to our tweet, and they next day only they rescued the horse Yeah, Oh, so wow. it's so nice with to the hear. yeah See, with the help of animal husbandry department. They rescued correct. it next day only. Okay, so it's good to know that police are getting involved very actively, and I hope and also like when some like for example like if somebody is arrested, like what you told, like the strict action has been taken on the person No, who no. Actually, the problem is that our law is very weak. They took correct the strict action of getting them arrested. But क्या है ना, correct यहाँ पे आपका फाइन इज हार्डली 50 रुपीज, correct correct तो वो तो आपको फाइन इंस्टेंटली बेल मिल जाता है फिर। instantly bail. So यही एक बात है जो I think we really need to when animal lovers and people like you who have been so actively involved. I don't know हाँ how तो we can do that. हाँ ये जो लॉ है इंडिया का एनिमल अब्यूज के लिए, उसको बहुत मेजर चेंजेस चाहिए। एंड इसको जितना ह्यूमंस के लिए एक रहता है ना कि ह्यूमन को आप मर्डर कर देते हो तो जैसा एक्शन होता है, तो एनिमल्स के लिए आई बिलीव सेम चीज होना चाहिए। Correct, correct. Like in US, like it's a felony. Like every November last 2019 May, Donald Trump has signed an order that any type of animal abuse is a felony when it is caught. ओके, So दैट्स रियली यहाँ पे ऐसे हुआ है. So what can we do? Like मैं तो as a animal lover and you being you have an organization, right? So what we can do? Like, do we think like people we can like organizations like you together can come and give a petition to and with the हाँ, help of Maneka Gandhi or to the animal welfare? What can be done? So इट्स लाइक वी you've ऑल गेट changed the टुगेदर law. ना, अगर हम लोग सब एक साथ मिल जाते हैं ना, लाइक ऑल दी ऑर्गेनाइजेशन और ऑल दी एनिमल लवर्स ऑफ इंडिया, एंड अगर हम लोग Correct. एक पिटीशन फाइल करते हैं ना, तब Yes. ऑब्वियसली गवर्नमेंट को इस चीज के बारे में सोचना होगा एंड करना ही होगा। बट उसके लिए हम लोग सबको एक जगह स्टैंड करना होगा एक साथ। Correct. Correct. So एंड why मेरे को don't और you? हाँ क्या I said, why don't you start a petition? Like just an example, like हाँ कोई तो हाँ हाँ कभी तो somewhere someone has someone to has to start, start. Why या don't you start? It's a request. Like why don't you start so that other people, if once someone start it, then there are a lot of other people who will join you. I'm sure thousands and lakhs will join. The This awareness is I of think animals once have this organization, I think these things will become easier, right? Petitioning that and हाँ approaching the हाँ government and the proper authorities. Because once हाँ you have a registration in hand, I think the हाँ government takes you more seriously, मोर right? सीरियसली करेक्ट। हाँ Okay, we have a question from one of our Facebook, Facebook users, Minhaj Momin. He says, "Do you think, Vineet, if sterilization of aged dogs will give them better health?" एजेड डॉग, यस यस एनी डे, बिकॉज व्हाट हैपेंस ना, अगर कोई डॉग का एज हो जाता है 7-8 ईयर्स, उसके बाद भी अगर वो प्रेग्नेंट होते हैं ना, तो ऑब्वियसली उनका हेल्थ में काफी इम्पैक्ट पड़ता है जब वो डिलीवर करते हैं। एंड मैंने बहुत देखा कि उसके कारण उनका आपका
कैंसर भी हो जाता है, जिसके कारण नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होते रहता है, ब्लीडिंग का इशू हो जाता है उनका। तो अगर एजेड डॉग को स्टेरलाइज करे तो भी सही रहेगा, Okay. Okay. उनके Is हेल्थ there में any कम। special procedure? Like, is there any not procedure? I mean, is there any special care that needs to be taken while sterilizing aged dogs? हाँ, in case of male dogs, I don't think there is a special care required, but in case of female dogs, yes. Okay. Okay. And especially we have to be sure that they have not conceived. Okay. 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 One more question from one of our Facebook friends, Darshan Jain. He's asking, what made you do this, and what are the consequences or situations that you faced while starting the organization? I think what he means is, what are the challenges when you started out? Yeah, in the beginning it was very What difficult. inspired you to do this? ठीक है, मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ। इंस्पिरेशन का ऐसा है कि एक डॉग था जिसका नाम स्वीटी था। तो लाइक वो मेरे एक मतलब हो गया इसको अराउंड 5-6 इयर्स हो गया। तो मैं एक दिन देखा इट वाज रेनिंग वेरी हेवीली एंड शी वाज मेरे घर के बाहर था एंड शी वाज वेरी सिक। तो मैं उसको देख के मेरे को खराब लगा एंड आई गेव हर सम फूड एंड अ प्लेस टू स्लीप इन माय स्टेयरकेस। आई गेव हर ब्लैंकेट। फिर नेक्स्ट डे वो मच बेटर था। उसके बाद मैं उसको एक वेटनरी डॉक्टर के पास ले गया था। वहाँ डॉक्टर के पास ले जाने के बाद मेरे को मालूम पड़ा कि इसको ज्यादा कोई इशू नहीं, कमजोरी हो सकती है, बट ये प्रेग्नेंट है। एंड लाइक आफ्टर वीक और 10 days शी डिलीवर्ड 4 बेबी। सो जब वो बेबी को डिलीवर किए ना, तो वो एक सेटिस्फैक्शन मेरे को मिला। मतलब हो सकता है कि मेरी जगह कोई और भी उसको हेल्प कर सकता था, या मे बी उसको हेल्प का दरकार नहीं था, वो ऐसे भी, बट फिर भी मेरे को एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला। मेरे को लगा कि क्या मालूम वो बच्चा मेरे कारण ही बचा, या वो शायद उस दिन मर जाता है, जो भी। तो एक बहुत अच्छा सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला मेरे को। उसके बाद ग्रेजुअली मैं थोड़ा करके स्टार्ट किया, जैसे कि मैं मेरे एरिया के जितने भी डॉग्स थे ना, उनको फीड करना स्टार्ट किया। मेरे को मेरे एरिया में कोई बीमार दिखता था तो मैं उसको उठा के डॉक्टर के पास ले जाता था। बट फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि अलोन यू कैन नॉट डू दिस, आपको एक टीम चाहिए। एंड मेरे जैसे और भी बहुत जन है जो कि कर रहे हैं, उन लोग भी बहुत चीज नहीं कर पा रहे क्योंकि अलोन दे कैन नॉट डू। तो इसलिए मैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया, मतलब एक पेज फॉर्म किया था फेसबुक में, अलॉन्ग विद को फाउंडर जो मेरे हैं अनिंदिता। तो हम लोग ने मिलकर ये पेज फॉर्म किया। उसके बाद ग्रेजुअली हम लोग का 2 से 4, 4 से 6 ऐसे करके टीम बनते रहा एंड फिर हम लोग आज 65 मेंबर्स हो ही गए। एंड जो चैलेंजेस का बात है, इनिशियली क्या होता रहा ना, जब हम लोग स्टार्ट किए थे, पीपल यूज्ड टू लुक डाउन एट अस, लाइक उन लोग हम लोग को रिस्पेक्ट नहीं करते थे। उन लोग हमें बोलते थे कि क्या काम करता है, रास्ते के डॉग को तुम लोग टच करते हो, उसमें कितना वायरस रहता है, क्या क्या रहता है। मतलब बहुत ही मतलब दे यूज्ड टू लुक, मतलब क्या बोलूं मैं, उन लोग मेरे घर पे कोई बोलते थे कि आपका बेटा क्या पागल है क्या, क्या क्या काम करता है रास्ता का जानवर लोग का, अच्छा लगता है कि कोई अच्छा फैमिली का लड़का ये काम करता है क्या। ये तो बहुत सारा चीज होता है, बट आई यूज्ड टू इग्नोर। बट ग्रेजुअली यही चीज के लिए लोग रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर दिया मेरे को कि हाँ यू आर डूइंग अ रियली गुड जॉब। पीपल स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग। तो इट टुक टाइम टू गेन देयर ट्रस्ट, बिकॉज स्टार्टिंग में तो उन लोग को क्या होता है ना, बहुत लोग ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं, एनजीओ स्टार्ट करते हैं, एंड स्टार्टिंग में उन लोग काम करते हैं ना, उसके बाद उन लोग का ऑब्जेक्टिव खाली मनी मिंट करना होता है। तो अगर आप कुछ कर रहे हो ना ये काम, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू गेन ट्रस्ट ऑफ पीपल। तो स्टार्टिंग में डिफिकल्टी हुआ, पर gradually when people started seeing that we are doing actually something good for the society, they started appreciating our thing. Great. Okay, I think we are done with the questions. Million is there. Vinit, অসমীয়া জানা না জানা? জানো sir. আচ্ছা, তো তুমি যেটা স্টার্ট কৰিছা এতিয়া, mean it was very nice to see somebody from Dibrugarh. We are all looking at Dibrugarh because আমি সব জায়গায় এজন বিচাৰি আছো, and we would like to promote. তো তোমাৰ ওচৰে পাজৰে এটা you must be knowing এতিয়া যোৰহাটত কোনবা আছে নেকি আৰু শিৱসাগৰত কোনবা আছে নেকি? Could you please connect us to them? Yes, obviously sir, I'll do that. মই যোৰহাটৰ চিনি পাওঁ, এটা লোলো বুলি ফাউণ্ডেশ্যন আছে এটা, তো তেখেতে ভাল কাম কৰি আছে যোৰহাটত। তো মই ডেফিনেটলি তেখেতৰ লগত আপোনাৰ কণ্টেক্ট কৰাই দিম। ওকে ওকে। আৰু শিৱসাগৰতো কোনোবা আছে নেকি? শিৱসাগৰ এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। আমি ট্ৰাই কৰি আছো তাত এটা আমাৰো ব্ৰাঞ্চ কৰিবলৈ, কিন্তু এতিয়ালৈকে আমি তাত এনেকুৱা মেম্বাৰ্ছ পোৱা নাই।
কিন্তু সোনকালে আমি কৰি লম আৰু এটা আপুনি শুনি ভাল পাব চিলাপথাৰতো এতিয়া নতুনকে এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন খুলি গৈছে হয় নি চিলাপথাৰ চিলাপথাৰ in Dhemaji? ইন ধেমাজি Okay, because that's where we are going to have our organization. I do not know if others knows or not, but Silapatra is the place where Aviskar will have a place. So Okay. so we'll be your neighbor, by the way. Vinny. আচ্ছা We yeah are that will be planning very to nice go to Silapatra. Okay, sir. So আৰু এটা question সুধিবলগীয়া আছিলে তো তোমালোকে awareness কৰি থাকা কৰা নে awareness drive এনেকুৱা আমি কৰি থাকো কৰি থাকো আৰু তোমাৰ পিছফালে কিছুমান কিতাপ আছে আৰু অভিষেকৰ পিছফালে কিছুমান কিতাপ আছে similar তো আৰু তুমিও লয়াৰ নেকি মই একচুৱেলি লয়াৰ নহয় মোৰ দেউতা লয়াৰ আছে আৰু মই এই এতিয়া দুটাৰে একে দুটা লয়াৰৰ বেটা okay because I saw this lawyer book এই দুটাৰ পিছফালে একে similar লয়াৰ হলে ভাল because আমাৰ এটা animal activist lawyer লাগিব ন এইবোৰ panel channel কৰিব হেৰি কৰিব কিন্তু আমাৰ গ্ৰুপত লয়াৰ আছে great we would love to connect it with your group ইয়াতো আমি কৰি আছো we are also compiling all this organization আমাৰো হেতুৱে goal কি একেলগে আমি কি কৰিব পাৰো panel we are trying to push that the animal welfare education should be in a primary school level to bringing everybody that together is very necessary তো তোমাৰ পৰা দুটা এক্সপেক্ট কৰো কি তোমাৰ চিনাকি যি organization আছে we would like to know animal organization first of all and second we also want to know কি ডিব্ৰুগড়ত ভাল কি কাম কৰিছে মানুহে কোন মানুহে ভাল কাম কৰি আছে it could be other thing also education at least tomorrow we would like to have so that we can invite them to also in our panel yes sir. I'll give that proper list to you about the organization that are working in Dibrugarh who are doing actually good work and also the animal organization who are working in Assam we do not discriminate okay we do not discriminate human and animal because some people said that no we are wanted only animal welfare people so wakali any jukaisu that we do not discriminate we just want human also we care for human also thank you Vinit all the best to you hello yeah can you hear us Vinit, can you hear us hello I can hear you Vinit yeah now I can hear okay so if no one else has any question we'll conclude the session our Facebook friends send their regards and they really liked your session Vinit they thank you so for that okay. And Vinit, yes, we too thank you for this wonderful session. You have been your session has been really enlightening and you've told us so many things and especially we didn't know about the, great work being done by the administration and the police in Dibrugarh, which often is a complaint in most cities. But it was really great to know that they are doing a great job out there. And I hope they really pick up in the areas where they are lacking that you mentioned as well. Thank you, Vinit. We would like to have you again. Yeah, thank you so much. And thank you, viewers, for connecting with us. Do connect with us tomorrow in a session that will explore the waste problem in the Northeast and provide and explore solutions to deal with that issue. Thank you for joining us. Goodbye. Good night. Bye. Good night.